Yes, student. Now let's see the viral disease, that is a common cold. Okay, common cold is a viral disease, and the causative agent of the common cold is rhinovirus. Okay, that is the rhinovirus. Organ affected. What are the organs? Rhinovirus. It is the most common viral infection found in a case of human. And these virus majorly affect the nose and the respiratory passages, but not to the lungs. It do not affect on the lungs. Lungs को नहीं करता है. Nose और respiratory जो passage है अपना उसी को affect करता है ये. Okay. Get it? Nose and respiratory passage. अब what is the method of transmission? इसका method क्या है transmission का? Direct inhalation of droplets from the infected person through the contaminated object like pen, books, cups, computer, keyboard. Okay. Inhalation होगा अगर droplets का सामने वाले ने sneeze किया, खांसी किया तो उसके droplets air droplets में आ जाती है और हम जैसे ही breathing करते हैं तो हम infect हो जाएंगे. Okay. और अगर contaminated object है suppose infected person का कोई भी आपने चीज़ यूज़ किया तो उससे भी आप क्या हो सकते हो contaminated हो सकते हो. Get it? What are the symptoms? Symptom nasal congestion and discharge, sore throat होता है, hoarseness, cough, tiredness होता है. जब common cold होता है, you everybody knows about it. क्या क्या symptom होते हैं? Congestion होता है nasal में, नाक में, है ना. Discharge होता है, ठीक है. sore throat हो जाता है, गले में खराश होती है, harshness होता है and tiredness होता है. Get it? It is usually last for 3-7 days. और ये 3-7 days तक क्या होता है? इसका infection का effect रहता है. Okay. So that is a common cold. Okay. Now let's see the next is a malaria. Okay, malaria. It is also these diseases are the protozoan disease. Okay, malaria is the protozoan disease. It's not a viral disease, not a bacterial disease. It's a protozoan disease. Okay, and causative agent क्या होगा इसका? Plasmodium. Causative agent is a Plasmodium species. Okay, and it's transmitted. इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो. ओके, जो कि दैट ट्रांसफर द स्पोरोजोइड, जो स्पोरोजोइड्स को ट्रांसफर करता है ऑफ प्लाज्मोडियम. ओके, यही होता है, मतलब ये वैक्टर है. एनोफ्लीज इज अ वैक्टर. ओके, एंड डिफरेंट स्पीसीज होता है इसका. जो डिफरेंट स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम falciparum. Okay, these are the different species of plasmodium, and these different species are responsible for different type of malaria. Okay, जैसे like plasmodium vivax species है वो benign tertian मलेरिया को कॉज करता है. प्लाज्मोडियम falciparum है वो malignant मलेरिया, जो कि मोस्ट सीरियस मलेरिया बोल सकते हैं. ओके, उसको कॉज करता है. ठीक है. एंड प्लाज्मोडियम मलेरी जो आपका क्वार्टन मलेरिया है उसको कॉज करता है. प्लाज्मोडियम ओवल माइल्ड टर्शियन मलेरिया. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया और कॉज बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम. ओके, तो नाउ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑर्गन अफेक्टेड लीवर एंड आरबीसी. क्या क्या ऑर्गन इफेक्ट होते हैं मलेरिया में? एक तो आपका लीवर और एक आपकी रेड ब्लड सेल्स. ओके, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इट बाय बाइटिंग द फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, जो कि वैक्टर है इसका. ओके, दैट इज अ वैक्टर. ओके, नाउ लेट्स सी because the life cycle. Okay, what are the symptoms? Firstly, let's see the symptoms. What are the symptoms of the malaria? So the symptoms of the malaria is high fever and chill. Fever occurs on every alternate day. Okay, vomiting होगा, central headache होगा, skin chill, sweating होगा, respiratory में dry cough होगा, spleen में enlargement हो जाएगा, stomach nausea vomiting होगी, back pain होगा, muscular fatigue होगी, systematic fever होगा और central headache होता है. Okay, तो these are the symptoms of the malaria. Okay, अब now let's see तो मलेरिया द लाइफ साइकिल जो वो प्लाज्मोडियम, जो आपका जो मलेरिया है वो कॉजेटिव कौन है? प्लाज्मोडियम. अब दिस प्लाज्मोडियम जो होता है एंटर्स द ह्यूमन बॉडी. ये एंटर होता है ह्यूमन बॉडी में, बट इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कहाँ होती है? एक तो ह्यूमन बॉडी में होती है कंप्लीट, और एक कहाँ होती है? खुद एनोफ्लीज में होगी. ठीक है, ठीक है. तो ये एक ह्यूमन इन ह्यूमन्स और कहाँ पर हो रहा है? ह्यूमन्स में और इन मस्कीटो. दो जगह ही अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है? कंप्लीट करता है. तो मलेरिया तो 2 होस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट. ओके, तो प्राइमरी एंड डेफिनेटिव होस्ट इज अ फीमेल. डेफिनेटिव होस्ट इज अ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो कि वैक्टर है. ओके, एंड द इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट इज अ ह्यूमन बीइंग. ओके,
Get it? So this is the malarial parasites. So now let's see the life cycle of the malarial parasite. उसका लाइफ साइकिल हम देखेंगे कि what is the life cycle of the malarial parasites. देखिए, तो लाइफ साइकिल ऑफ malarial parasite, the malarial parasite require two hosts, human and anopheles, to complete their life cycle. Life cycle of Plasmodium start with injecting sporozoid through the bite of infected female anopheles mosquito. ओके अब कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले जो होता है फीमेल एनोफ्लीस मस्कीटो, ओके, इंसेक्ट करती है स्पोरोजाइट्स को. स्पोरोजाइट जो प्लाज्मोडियम है वो डेवलप होते हैं और स्पोरोजाइट्स को फीमेल एनोफ्लीस क्या करेगी? इंजेक्ट करेगी. किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर. ओके, ह्यूमन होस्ट है उसके अंदर क्या करेगी? इंजेक्ट करेगी. तो देन क्या होगा? इंसेक्ट करते ही पैरासाइट इनिशियली क्या करेगा? मल्टीप्लाई होगा लिवर में. ब्लड के साथ वो कहाँ चला जाता है? जैसे ही ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती है फीमेल एनोफ्लीस स्पोरोजाइट्स को, प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट्स को, उसके बाद सीधे वो कहाँ जाते हैं? लिवर में जाते हैं ब्लड के थ्रू. देन आफ्टर दे अटैक टू द लिवर, देन आफ्टर दे अटैक टू द रेड ब्लड सेल्स. उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? रप्चर होती हैं. देन दे रप्चर्ड. ओके, गेट इट? then they rupture. Then after this the release, जैसे ही blood cells red blood cells rupture होती हैं, then they release the toxic substance and this toxic substance is called hemozoin. okay, hemozoin rupture होगी, RBC hemozoin को release करेगी and hemozoin in resulting is responsible for the chill and high fever. उस टाइम पे हमें क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? हाई फीवर होता है, चिल होता है या शिवरिंग होती है. एंड शिवरिंग, और वो शिवरिंग रिकर होती है एवरी 3/4 days. ओके, जो कि क्या टॉक्सिन होता है ये जो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ रिप्चरिंग ऑफ RBC एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम. ओके, गेट इट? देन आफ्टर देन द फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन द पैरासाइट एंटर टू द बॉडी ऑफ एन. अब ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है. अब नाउ अब कोई फीमेल एनोफ्लीज आके क्या करेंगी? ब्लड को सक करती है इन्फेक्टेड ह्यूमन का. ओके, तो देन अब इन्फेक्टेड ह्यूमन का क्या करेगी? सक करेगी. ठीक है, तो पैरासाइट एंटर द मस्कीटो बॉडी. अब पैरासाइट वापस से कहाँ आ गया है? मस्कीटो बॉडी में आ गया. ह्यूमन बॉडी से कहाँ आ जाएगा? मस्कीटो बॉडी में. अब मस्कीटो की बॉडी में उसकी जो साइकिल्स होती हैं, गैमेटोसाइट सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, डेवलप इन द RBC ऑफ फीमेल एनोफ्लीस. ठीक है, जो अब वाली स्टेज है वो कहाँ? फीमेल एनोफ्लीस के अंदर जो गैमेटोसाइट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज बोल सकते हैं वो डेवलप होता है. ठीक है, देन फर्दर आफ्टर देन पहले RBC में, देन फर्दर डेवलपमेंट अकर्स इन द स्टमक वॉल ऑफ द मस्कीटो. ओके, स्टमक की जो वॉल होती है ना, ठीक है, डेवलप टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द मस्कीटो. देन आफ्टर दिस स्टेज जो गैमेटोसाइट स्टेज है वो कहाँ पर होती है? उसकी बॉडी में, है ना. गेट इट? The formation of gamete and fertilization take place in the intestine of mosquito and then the zygote develop further and form the thousand of sporozoites. zygote क्या होगा? डेवलप होगा, then फॉर्मेशन करेगा स्पोरोजाइट्स का. ओके, स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है. देन स्पोरोजॉइट्स जो है कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं? स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो. सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं मस्कीटो को. देन व्हेन द मस्कीटो बाइट द अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड. ओके, स्पोरोजाइट्स क्या हो जाते हैं? इंजेक्ट हो जाते हैं. गेट इट? तो नाउ दिस आर द लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो. गेट इट? ओके.